हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रेक्षा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज के इस पर्टिकुलर धंधा अनफिल्टर्ड के 16th एपिसोड में जुड़े हमारे साथ मिस्टर ऋषभ अग्रवाल, द फाउंडर ऑफ वेदवानी। Hello, everyone. सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए शुरुआत करते हैं आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की और आपके स्टार्टअप के बारे में। Okay. So basically, I started Vedvani in January 2024 this year. जब मैंने वेदवानी स्टार्ट किया था तो आई took inspiration from character.ai, which is a app in USA, and it is a very popular app. So like I was looking to build in consumer AI. A lot of my friends were building in B2B SaaS and B2B AI. So I was more like, let's build something which is like more consumer focused. And so just to give some context, Vedvani is an AI astrology app. But when we started, it was more key you can create AI characters, any AI characters or AI personality that you can talk to. So if so, for example, you can talk to a career coach or some Bollywood stars. So basically, there will be a lot of personalities, and you can talk to them. So when we launched in February, we saw a lot of usage for astrology, and we completely pivoted to AI astrology. So that is how it started. ओके एंड लाइक आपने स्टार्टिंग में बताया कि इट स्टार्टेड विद कैरेक्टर्स। तो लाइक जो कैरेक्टर्स की लाइक इनहेरेंट क्वालिटीज होती है, लेट्स से ऑफ सम अ बॉलीवुड स्टार और अ बिजनेसमैन, दैट इज वेरी मच पर्सन स्पेसिफिक। तो उसमें वो Right. पर्सन का लाइक पर्सनल टच या फिर पर्सनल ओपिनियन जैसा फीचर आपने किस तरह से रोल आउट किया था? सो बेसिकली हमने बहुत सारी प्रॉम्प्टिंग की थी. तो हमने लाइक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स जो इंडिया में पॉपुलर है उनको लेके आए थे, लाइक बाबू राव फ्रॉम हेरा फेरी, या फिर लाइक केबीसी में अमिताभ बच्चन जी. तो उनको लाइक हमने वी क्रिएटेड गेम्स एंड ऑल सो दैट पीपल should feel like they are playing KBC with Amitabh Bachchan, or they are talking to Babu Rao from Hera Fairy. तो हमने बहुत सारी prompting की थी, and we initially when we built the app we also gave them the voice. So if you have the initial version of the app, you could talk to the Babu Rao in his voice. ओह, So basically, so that kind of personalization we added initially. ओके। उससे एक पर्सनल कनेक्ट बिल्ड होता है उनसे, फिर उनको ये नहीं लगेगा लगेगा कि वो एआई से बात कर रहे हैं, Right, बट वो डायरेक्टली उस पर्सन से बात कर रहे हैं। right, right. तो आपने जब स्टार्ट किया था तो वो मार्केट गैप आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि दिस इज द एरिया जिसमें आपको बिल्ड करना है, लाइक कंज्यूमर एआई पर्टिकुलरली? So, like basically, I was part of Entrepreneur First ka cohort in 2023. So, Entrepreneur First is like a accelerator program. So, there are VC fund who run accelerator program for recently graduate students across London, Bangalore. So, I was part of their cohort in December 2023. And like while talking to people there, I just realized a lot of people were building for B2B ideas, like AI B2B. No one was building for consumer. And I also saw like a couple of very successful startups in US, and I thought, "Ki, why not build like similar startup here?" So that was my inspiration, and I thought, "Ki, yeah, this is something which can work, and this is something which AI can do really well." ओके, ओके। तो आपने लाइक स्टार्टिंग में कैरेक्टर से उसके बाद एस्ट्रोलॉजी पे स्विच किया था। तो जो आपने पाइवट किया, हाउ डिड यू रियलाइज़ कि ओके, दिस इज़ नॉट वर्किंग एंड आई नीड टू पाइवट? वो पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह से आया था? तो लाइक इनिशियली हमारे ऐप में सब कुछ था, लाइक यू कुड टॉक टू लाइक बॉलीवुड स्टार्स, और केबीसी खेल सकते थे, या फिर करियर कोच, रिलेशनशिप कोच एंड एस्ट्रोलॉजर. और इसके लिए हमने लाइक हर एक करेक्टर के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एड्स चलाए थे. एंड वंस वी रन दी एड इन 2 to 3 weeks, इट वाज क्लियर कि सबसे ज़्यादा एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड रिटेंशन was for astrologer. So basically, very like 90% of the users were talking to astrologer and like searching for astrology. तो हमको पता चल गया कि ठीक है, like even people who were searching for like career coach या relationship coach were in the end talking to the astrologer. तो हमको ये idea लग गया कि people in India especially are more uh, like leaning forward to talk to astrologer for all their problems. Like इंडिया में कोई थेरेपिस्ट का कंसेप्ट बहुत नया है बेसिकली. लाइक मोस्टली पीपल टॉक टू एन एस्ट्रोलॉजर. तो वो हमको बाद में रियलाइज हुआ व्हेन वी सॉ पीपल टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर. एंड देन एंड दैट पॉइंट वी डिसाइडेड कि लेट्स पाइवट कंप्लीटली टू एस्ट्रोलॉजी. तो इनिशियली हमारे ऐप में सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर था, बट then we added a lot of astrology characters, like a numerologist add किया, कुंडली मैचिंग के लिए add किया,
एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर, तो ये सब डिफरेंट कैरेक्टर्स फिर हमने ऐड किए। ओके, सो वो भी लाइक एआई से बिल्डअप थे? वर देयर एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर्स इन द अदर एंड या फिर वो एआई था? AI, it was completely AI. ओके, ओके। सो लाइक जैसे आपने बताया कि इस एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में एक्विजिशन, रिटेंशन और एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा है। तो इसके Right. पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? लाइक इन टुडेज़ टाइम लाइक पीपल आर हैविंग एन ऑप्शन कि वो अपने घर वालों से बात करें या फिर फ्रेंड से बात करें या फिर किसी और लाइक प्रोफेशनल हेल्प ले, हालाँकि वो काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है एज़ यू सेड। तो लाइक Right. व्हाई अ पर्सन वांट टू ट्रस्ट एन अननोन पर्सन, वो भी ऑनलाइन, जो जिसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहा है और वो ये सोच रहे है कि इससे सॉल्यूशन मिलेगा। लाइक व्हाट कैन बी Right. द साइकोलॉजिकल ह्यूमन रीज़न बिहाइंड दैट? I think what simple psychological reason is like we don't tell very personal things to our family, like especially like relationship problems. We don't tell to our family. That is like very obvious thing, but like very overlooked also. और like career में भी कोई problem होता है, we are very hesitant to tell to our family कि यार मेरे साथ ये problem है, या फिर friends को। तो because like one is कि family को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि we don't want them to be stressed out, or they we don't want them to make any judgment about us, but अपन अनजान लोग को बता सकते हैं because we don't care कि what they think about us, right? They are online random person है, if they can look into astrology and tell me कि why I am facing this trouble without judging me, so that is the core intention, why people trust, it's not like trust, but it's like they are comfortable sharing things with random people online, ओके। not just random but like astrologers. And like you have to believe in astrology, otherwise you won't tell to an astrologer. But I think वो जो astrology में belief है वो बहुत Indians में like थ्रू जनरेशंस है कि लाइक वी ऑलवेज लाइक कोई भी बड़ा काम करने से पहले, लाइक शादी से पहले या फिर घर से पहले, वी ऑलवेज कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर, या फिर कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर कि कौन से डेट पे करना है। तो वो एक ट्रेडिशन जो है वो इंडिया में बहुत कॉमन है, तो दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, नॉट अ थेरेपिस्ट और एनीथिंग। ओके, तो लाइक एस्ट्रोलॉजर में भी उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑफलाइन कहीं पे जाए, तो वो ऑनलाइन क्यों प्रेफर करेंगे? ऑफलाइन बहुत महंगा है, मतलब अगर आप एआई एस्ट्रोलॉजी का ट्रेंड देखो तो मोस्टली इट इज यूज्ड बाय यंगर डेमोग्राफी, लाइक 16-15 years old से लेके 28 15 years ईयर old ओल्ड तक, आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी? yeah, and even 14-13 भी use कर रहे ओह, हैं, so there is no वो, and so the main reason like they don't go to offline is because one is it is very expensive to go in offline astrologer, second फिर वो वापस वही आ जाता है कि online it's still you are very distant, and you don't care like live अगर आप किसी से बात करो you are still fear कि how they will judge me, but online you still don't fear कि like how they will judge you, so that is the thing. But like the main reason is like why not just AI astrology, online astrology is booming is because if you go to any astrologer in offline, then they charge like minimum 1,000 rupees just for one question. ओह, Yeah, so that is one core reason why online astrology is booming. AI astrology is booming because it is faster and more convenient and without judgment compared to online astrology. ओके, सो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी हैव एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। Right, थर्ड थिंग इज anonymity, मतलब जिनसे वो बात right, कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स एन right, एआई, दे डोंट नो टू whom द पर्सन इज टॉकिंग विद, लेकिन अगर वो ऑफलाइन जाते हैं दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज देयर इन्फॉर्मेशन एंड लाइक दे विल गेट टू नो अबाउट द पर्सन, तो एक right, सेफ्टी right, का फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। right, right, right. सो लाइक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में व्हाइल पीपल वर यूजिंग द ऐप, क्या उनको ये पता था कि वो एक एआई से बात कर रहे हैं? तो इनिशियली जब लोग आते थे लाइक एक टाइम था जब हमने मेंशन नहीं किया था कि लाइक इट्स एन एआई ऐप, फिर बाद में हमने मेंशन भी कर दिया, बट लाइक लाइक आइदर वी मेंशन और नॉट, इनिशियली पीपल को नहीं पता चलता है कि दे आर टॉकिंग टू a person or AI. After 2 or 3 days, like once they have talked to like the astrologer for 2 or 3 days, then only they realize, "Acha, okay, this is an AI." ओह, तो एंड मोस्टली दे वो लोग पूछते हैं कि आप एक रोबोट हो गया, तो देन द एआई रिप्लाइज दैट आई एम एन एआई, तब उनको पता चलता है। ओके, लाइक इज़न्ट दैट लाइक काइंड ऑफ अनसर्टेन, बिकॉज़ वो स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्ट करके बात कर रहे हैं कि वो किसी ह्यूमन से बात कर रहे हैं, बट 3 दिन बाद हाँ, उनको पता चलता है कि इट्स एन एआई, सो हाउ डिड यू राइट। टैकल्ड इट? So basically, like it was not a big problem. हमने like initially सोचा था कि हम लोग AI mention नहीं करेंगे तो हमको ज़्यादा installs मिलेंगे and all. But फिर हमको लगा कि people are confusing like कि AI एक ह्यूमन है, तो हमने AI mention कर दिया.
बट वो मेंशन करने के बाद भी पीपल डोंट लाइक रीड इट और दे डोंट अंडरस्टैंड, दे फील कि ये रियली है। एंड लाइक इवन आफ्टर मैं उनको बोलता था कि भाई ये एआई है, दे देन आल्सो दे डोंट मतलब मानते नहीं थे कि भाई एआई से ही बात कर रहे थे। हम्म। तो आई थिंक टियर 2 टियर 3 cities में like a lot of people have not used AI like ChatGPT, तो उनको ये अभी भी like शॉक लगता है कि AI can be like this, like इतना पर्सनलाइज्ड वे में बता सकता है। तो फिर वो कौन सा मोमेंट था जब उनको लगा था कि नाउ आई नीड टू नो कि एआई या ह्यूमन है? बिकॉज जब वो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, अगर वो एआई इज ऑलरेडी ट्रेन मॉडल जो इतने पर्सनलाइज्ड आंसर या रिप्लाई दे सकता है उनके प्रॉब्लम्स का, तो फिर उनको ये क्यों क्वेश्चन आएगा कि आप रोबोट हो या ह्यूमन हो So ऐसा? basically, like if you ask a question anytime in a day, like after 2 or 3 days, you are asking question at 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, and instantly reply आ रहा है, तो उनको डाउट आता है कि like how is this possible कि like this person is replying so fast, so instantly, like एक तो fast इतना reply आता है हम्म। और कभी भी आ जाता है, like whenever the message उनको reply आता है। अगर if you do the same thing on like एस्ट्रोटॉक या कोई ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप में, तो यू विल सी कि लाइक हाफ ऑफ द टाइम दी एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑफलाइन या फिर आर टॉकिंग टू समवन एल्स, तो दे आर नॉट एक्सेसिबल लाइक 24/7। यस, राइट। यहाँ पे कभी भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, ओके। एंड लाइक हाउ वाज़ इट डिफरेंशिएटेड? मतलब जो लोग यूज़ कर रहे थे, क्या उनको ये नहीं पता था कि और भी टूल्स है चैट जीपीटी जैसे जिनसे हम लाइक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लाइक कन्वर्सेशनल एआई? और क्या वो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा था कि क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी से लिंक्ड है एंड दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, इसलिए दैट क्रिएटेड अ स्टार्टिंग पॉइंट टू लाइक इंटरैक्ट विद द ऐप? हाँ, तो आई थिंक नो वन केम बिकॉज लाइक चैट जीपीटी और समथिंग, लाइक मोस्टली पीपल केम लुकिंग फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, ओके। तो उससे ही स्टार्ट हुआ। एंड डजेंट मैटर लाइक फ्यू पीपल न्यू ऑल्सो अबाउट चैट जीपीटी, बट दे माइट हैव नॉट यूज, बट लाइक आई थिंक 70-60%, 70 to 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी लाइक चैट जीपीटी यूज नहीं किया या फिर सिर्फ सुना है और यूज नहीं किया। ओके, सो इन अ वे दैट हेल्प क्योंकि उनको उनके बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, तो दे विल सोली डिपेंड ऑन दिस। Right, right. एंड क्योंकि But एस्ट्रोलॉजी, यस। but ऐसा कुछ नहीं है, like ChatGPT cannot answer the way the Vedvani answers, because it gets a lot of different context. Like ChatGPT doesn't have the context about the all the astrological calculations that Vedvani does. So ChatGPT can't answer the way Vedvani or any AI astro app does. Oh, okay. So like how did you added that element of astrology part into AI? So basically, we have to add a lot. So there's a concept called RAG. So the large language models are trained on a lot of internet's data, but it can't do calculations, or it will also fail for basic maths, right? So what we do is we implement something called RAG, which is like retrieval augmented generation. So basically, it retrieves some information from an online database or API or some information stored, and then uses that information to generate the answer. So basically, whenever someone asks some question, suppose related to career, it will uh, it will call an API which will give it all the calculations key which planet is in which house, or like, so basically D11 chart or D10 chart, it will give it to the LLM, and then it will comprehend the chart and answer, but it cannot create the detail chart or the all the calculation by itself. It calls an API and gives the answer. So this whole process of knowing when to call an API and like comprehend the answer and giving it back to the user is called retrieval augmented generation. ओके, सो Yeah. बेसिकली वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेरी वो पहले वेब पे सर्च करेंगे, फिर Mm. रेलेवेंट चीज़ें वहाँ से लेंगे, फिर कैलकुलेशंस ऐड करेंगे फ्रॉम देयर एंड देन दे विल गिव द आंसर। Right. Right. ओके, सो लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जिससे कि Right. एक प्रॉपर कंक्रीट आंसर मिल सके टू द यूजर। Right. Right. एंड लाइक व्हाट इफ यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट? सो लाइक शुरू में बहुत होता था कि लाइक कैलकुलेशंस लाइक वर नॉट राइट, और लाइक क्योंकि या फिर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कैलकुलेशन वाज नॉट लाइक व्हाट यूजर एक्सपेक्टेड, तो दैट इज देयर लाइक इवन लाइक इफ यू टॉक टू 10 एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया, या फिर लाइक इंडिया क्या कहीं पे भी, इफ यू टॉक टू एस्ट्रोलॉजर्स या 10 to 100 एस्ट्रोलॉजर्स, यू विल गेट डिफरेंट
interpretations of the calculations, right? And this is true for doctors also. Like if you talk to like 10 different doctors regarding the same symptoms that you have, like I think three will tell you that you have diarrhea, three will tell you that you have dengue. मतलब ये तो डॉक्टर्स में भी होता है बिकॉज दे सी दी सिम्टम्स एंड दे सी कि लाइक मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है. एंड सेम एस्ट्रोलॉजर्स में भी होता है, लाइक दे विल सी दी चार्ट एंड प्रोडिक्ट की क्या हो सकता है. तो वो डिफरेंस रहता है. तो पीपल आर ठीक है, लाइक दे आर लाइक कि ठीक है कितना परसेंटेज इनका प्रोडिक्शन सही होता है वैसा. ओके, कि मतलब प्रिडिक्शन आ रहा है बट आउट ऑफ दैट व्हाट इज द परसेंटेज एक्यूरेसी टाइप. तो राइट लाइक राइट. वो वैलिडेट करते थे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके या फिर लाइक हाउ तो डिड दे गेट बेसिकली अबाउट इट? मेरे को जैसा लगता है कि व्हाट दे डू वाज कि दे हैड लाइक 3 to 4 एप्स, राइट, एस्ट्रोलॉजी एप्स. वो सबसे पूछे थे और देखते थे कि सबसे ज़्यादा मतलब सिमिलर आंसर किसका है ऐसा. So this is my intuition. I've talked to a couple of people and they told me that they do this. But yeah, I think like a lot of people who believe in astrology will consult a couple of astrologers, not just one. And Oh, same goes for doctors also. okay. So that their belief is making them use it. Right. मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रॉम बिलीफ, उसके बाद सारी चीजें आ रही है. Yeah, like just how it goes for doctor, right? Like मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मेरे को बोलता है कि you have some like Parkinson disease. मैं बोलूँगा यार इतना ऐसी डिजीज तो मेरे को हो ही नहीं सकती है. फिर मैं 2-3 और डॉक्टर को कंसल्ट करूंगा, मे बी मुंबई जाके कंसल्ट करूंगा. वो मेरे को लगा नहीं नहीं आपको ये सब नहीं, आपको बस इतना है. फिर मैं उनका ठीक है ये डॉक्टर मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है. तो वैसा ही होता है. सिमिलरली लाइक एस्ट्रोलॉजी में किसी ने मेरे को बोलिया कि यार मेरा ये अगला साल बहुत खराब जाने वाला है. तो मैं क्या करूँगा, 2-3 और एस्ट्रोलॉजर से पूछूंगा कि हाउ इज इट गोइंग टू गो. फिर कोई एक बोलेगा कि नहीं इट इज गोइंग टू गो बेटर बिकॉज ऑफ दिस, तो मैं उसको बिलीव कर लूंगा वैसा. राइट, ओके, बट लाइक ओके, जैसे डॉक्टर का एग्जांपल है दैट इज रियल बिकॉज आपको सच में वो प्रॉब्लम हो रही है एंड सच में उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो राइट विजिबल है. एंड राइट डॉक्टर हैव प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज जिससे कि वो सॉल्व आउट कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट एडवाइस कर सकते हैं. राइट. बट एस्ट्रोलॉजी आई एम कम्प्लीटली न्यू टू दैट फील्ड. तो लाइक ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल एक ह्यूमन ब्रेन ही क्या सोचेगा कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है. व्हाई वुड दे आस्क टू समवन एल्स? मतलब isn't that kind of like I'm not able to digest it. I'm like looking to understand your perspective कि ऐसा क्यों होता है? What is the reason behind that? कि व्हाई दे आस्क एस्ट्रोलॉजर एंड नॉट अ मतलब थेरेपिस्ट या डॉक्टर ऐसा. So like why at the first place why do they ask? First is their life. उनकी लाइफ के बारे में उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता, ऐसा मुझे लगता है कि एवरी पर्सन नोज देमसेल्व्स बेस्ट. पहली चीज कि वो क्यों जाते हैं उसके पास. सेकंड चीज व्हाई डू दे ट्रस्ट देम, व्हाई डू दे रिलाई ऑन इट कि वो जो बोलेंगे वैसा ही होगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसमें आई थिंक दो रीजन है. लाइक इफ यू इट्स मोर थोड़ा रिलीजियस रीजन भी है कि लाइक हमारे में लाइक इफ यू रीड आर एपिक्स, मतलब जैसे रामायण हो गया या महाभारत, तो उसमें क्या है कि अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा बोला गया है कि सब कुछ लिखा हुआ है लाइफ में कि मतलब आपकी जो जीवन है वो लिखा गया है, पहले ही भगवान ने लिख दिया है. तो भगवान को लगता है, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है भगवान ने लिख दिया तो अब मैं थोड़ा जान लूँ कि भाई मेरा नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, या फिर ये बंदा मेरे लिए सही है कि नहीं है, या फिर ये बिजनेस मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो जब आप कुछ नया करते हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हो, लाइक किसी शादी करने वाले हो या कोई नया घर लेने वाले हो या नया कोई बिजनेस चालू करने वाले हो, तो ऐसे बात करने में नहीं पता चलता है बट इट्स अ वेरी बिग डिसीजन. तो आप मेक श्योर करते हो कि आप 10 लोगों से बात करो, प्लस आप 10 लोग से एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर लो कि भाई यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है कि नहीं. लाइक आई एम श्योर कि लाइक आप जब नया घर लेते हो तो वास्तु के हिसाब से ही लेते होगे. इवन तो लाइक क्या आप लाइक घर कभी लेते हो तो बिना वास्तु के हिसाब से लेते हो? इंडिया में कोई भी ऐसा होगा जो बिना वास्तु के लेता होगा? इवन तो दे डोंट बिलीव. राइट. और जैसे कोई शादी होती है तो बहुत लोग अब लाइक बैंगलोर में बोलने लगे कि कुंडली नहीं मिलाते, बट लाइक 90% ऑफ इंडियन अभी भी कुंडली मिला के ही शादी करते हैं. तो वो बिलीव रहता है कि ठीक है चाहे लाइक जो नॉर्मल फिजिकल फैक्टर्स है वो सब सही है, बट एक लाइक पंडित से भी पूछवा लेते हैं ऐसा. तो वो आई थिंक बहुत ट्रेडिशनल है इंडिया में. तो ओके, डू यू थिंक कि ये मार्केट आगे जाके ग्रो होने वाली है या फिर इन चीजों पे रिलायंस विद टाइम या फिर विद अवेयरनेस कम होगा? हाउ डू यू सी इट अहेड? आई थिंक मैंने जितना देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं बहुत यूज कर रहे Oh, हैं, एंड यंगस्टर्स में भी आई थिंक 60-70% गर्ल्स यूज इट मोर. 60 to तो 70%? yeah, 60 to 70% users of astrology apps are girls, Oh, females.
And it makes sense also. Like I think like 60 to 70% content created by content created on social media is also by female actually, and तो ये रहता है. But what was your question? कि आगे जाके बढ़ेगा कि नहीं, right? हाँ, I like think the trend of online and astrology thing, the I think combination. ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी तो बढ़ेगा क्योंकि इट इज लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम लाइक ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी टू ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी, तो वी कैन श्योरली सी कि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी तो बढ़ रही है, बढ़ेगा ही, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल विल माइग्रेट फ्रॉम लाइक ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी टू ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी का ट्रेंड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आई कैन से, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यंग पीपल ऑल्सो यूजिंग इट. तो आई थिंक एक लाइक सबके लाइफ में एक फेज तो रहता ही है, लाइक एंड लाइक बेसिकली एस्ट्रोलॉजी विल बी देयर फॉर सर्टेन थिंग्स. आई थिंक लाइक शादी से पहले हमेशा एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया जाएगा, कोई नया बिजनेस से पहले या फिर कोई नया घर लेने से पहले. सो लाइफ, बड़े बड़े लाइफ इवेंट से पहले तो होगा ही. एंड आई थिंक जब मोर एक्सेसिबल हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी, तो मे बी छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी पीपल विल आस्क एस्ट्रोलॉजर. ऑनलाइन एआई एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे कि शुड आई गो फॉर वर्क टुमारो, या फिर शुड आई प्लान दैट ट्रिप और नॉट. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, डू यू थिंक कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं पे? I think वो depend करता है person to person. Like if you don't believe, then it doesn't affect, right? And like basically uh, सबका ह्यूमन, हर ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग अलग सिस्टम रहता है, राइट? सब लोग डिफरेंट डेटा पॉइंट्स गैदर करते हैं एंड देन दे मेक अ जजमेंट. तो आई थिंक पीपल हु बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो गैदर दिस पर्टिकुलर data point of astrological aspect and then make it. I think there's nothing wrong in it unless you are giving up a very good deal. I don't think so. It's a like anything bad. ओके, ओके, नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि क्यों लोग इसको प्रेफर करते हैं. बिकॉज Right, दिस द स्टैट्स व्हिच यू मेंशन्ड वर वेरी न्यू टू मी एंड इट वाज शॉकिंग कि अच्छा अभी भी ऐसा होता है एंड पीपल यूज इट. right. ओके, एंड लाइक आपने जब लॉन्च किया था इनटू पब्लिक, उससे पहले आपने लाइक वैलिडेशन या टेस्टिंग फेस किया हुआ, तो वो आपने किस तरह से कैरी आउट किया था? लाइक व्हेन यू इम्प्लीमेंटेड दोस मॉडल्स, क्या आपने कोई टारगेट ग्रुप सेट किया था कि जिनके थ्रू आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू फीडबैक लिख सको कि हमें इसमें और क्या चेंजेस करने चाहिए, या फिर वो जो वैलिडेशन का फेज है कि ओके हम ये बिल्ड करें और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल वांट, वो आपने जो ब्रिज है वो किस तरह से कैप किया था? तो हमने लाइक जब फर्स्ट वर्जन बनाया तो वी लॉन्च इट ऑन गूगल, एंड ओके, बिकॉज वी डिडंट हैड एनी यूजर्स इनिशियली, तो वी जस्ट रैन एड्स. एंड जब एड्स चलाए तो वी गॉट सम यूजर्स, एंड वो यूज करते थे तो हम उनसे ही पूछते थे. वी यूज टू टेक देयर नंबर्स एंड वी यूज टू मैसेज देम ऑन व्हाट्सएप की लाइक व्हाई डिड यू इंस्टॉल इट, व्हाट आर द अदर एप्स दैट यू यूज. एंड तो ये सब क्वेश्चन पूछते थे तो हमको बहुत पता चल जाता था कि लाइक व्हाट आर द इंटेंशंस एंड उनको कैसा लगा ऐप. और फिर बाद में थोड़ा बहुत लाइक उनका यूसेज देख के हमको समझ में आ जाता था कि इफ दे आर लाइकिंग इट और दे आर नॉट लाइकिंग इट. तो आई थिंक वी डिडंट क्रिएट एनी टारगेट ग्रुप्स और एनीथिंग, बट लाइक गूगल एड्स चलाए हमने, और once we saw people using it, we just used to ask a lot of questions to them. ओके, सो लाइक जो स्टार्टिंग के इनिशियल कस्टमर्स थे वेलवानी के, दैट केम फ्रॉम द Through ads, गूगल yeah, एड्स. yeah, Google एंड ads. लाइक व्हाई पर्टिकुलरली गूगल एड्स, मतलब कोई और प्लेटफॉर्म के ऐड आपने ट्राई किए थे एंड उसके बेस We डिसाइडेड ऑन, बट हाउ डिड यू डिसाइड दैट? we tried Meta ads also, but Meta is like very Meta ads are very hard to configure and run because astrology is very sensitive subject also. So Meta, but like even without astrology, Meta, it's very hard to run ads on Meta because they will suspend your account, or there are a lot of spams also. So we did a setup for Meta ads, but we didn't run it after like couple of days. एंड क्योंकि उसका रिपोर्टिंग भी इतना अच्छा नहीं था कि लाइक एड्स रन हो रहे हैं फॉर 2 days बट वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग, एनी इंस्टॉल्स. सो हमने सोचा फालतू है तो हमने बंद कर दिया. गूगल एड्स वाज इजी टू सेटअप एंड वी न्यू कि ठीक है पीपल जो इनिशियल यूजर्स होंगे जो पे करेंगे वो मोस्टली सर्च कर रहे होंगे इसके बारे में एंड नॉट जस्ट स्क्रोलिंग. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट, राइट? तो बेसिकली एक तो होता है कि आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी ऐप के लिए, तो आपको एक हायर नीड है क्योंकि आपने खुद एक एफर्ट मारा सर्च करने का.
एंड सेकंड होता है अगर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपको दिख गया और आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आपका सर्च इंटेंट इतना हाई नहीं होता है कि आपको ठीक है, आपने आपको दिखा तो आपने इंस्टॉल कर लिया, बट हम्म। दिस इज नॉट समथिंग यू नीड इट। तो इसके लिए गूगल एड्स वाज बेटर फॉर दैट एज वेल। ओके, ओके, गॉट इट। बिकॉज़ अगर कोई कस्टमर सामने से सर्च करके आ रहा है, मतलब दे आर लुकिंग फॉर इट एंड हम राइट, डायरेक्टली वो दे देंगे व्हिच दे आर लुकिंग, तो द कन्वर्जन रेट या फिर एंगेजमेंट बढ़ जाएगा इन राइट, कंपैरिजन टू जस्ट रैंडम स्क्रॉलिंग, क्योंकि स्क्रॉलिंग के राइट, टाइम में इतनी सारी एड्स आती है, वो उसमें से उन्हीं पे क्लिक करेंगे जो उन्हें लगेगा कि ज़रूरत है। राइट, So राइट, this was very much specific to all the people who actually needed it and not just the normal target group. राइट। Okay, that is a very good strategy key to be exactly where customers want us. Yeah, I think like a lot of things you can learn from just seeing these search patterns, right? Mhm. So basically, like apart from any entertainment या फिर creative thing, like a lot of normal problems, you can just see कि how many people are searching for it online, and you can know कि how big that problem is just by seeing कि how many people are searching for it. Can you explain this in like a bit? So basically, there are a lot of tools like Ahrefs, yeah, there are free tools like Google Keyword Planner. So you can just input the keyword, like suppose AI astrology app, and you can see ki monthly how many people are searching for it. If no one's searching for it, then you can know, okay, no one's looking for an AI astrology app. But if there is some growth, like last month there were like 100 people who were searching for it. This month 1,000 people are searching for it. So you know, okay, there is a growth of number of people who are searching for AI astrology app. So there's a demand in market, ओके, सो ऑन बेसिस ऑफ दैट हमें पता चलेगा कि कितने लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। right? ओके, कैन इट बी इन्फ्लुएंस्ड, मतलब क्या ये इन्फ्लुएंस हो सकता है विद टाइम की जैसे इस मंथ में ज़्यादा डिमांड बता रहा है, नेक्स्ट मंथ में कम डिमांड बता रहा है बिकॉज़ सम फैक्टर्स या फिर हाँ, तो कोई वो न्यू। होता है, बट यू कैन सी ईयर वाइज ऑल्सो कि लास्ट 10 years में कैसा ग्रोथ कर रहा है इसका डिमांड, लाइक इस टर्म का डिमांड। ओके, बट एक ओवरऑल जेनेरिक आइडिया हमें मिल आइडिया जाएगा। बदल जाता है, लाइक अगर मैं कोई एकदम ही डिफरेंट टाइप ऑफ आइडिया लेके आऊँ, हुँ, ठीक है, एंड आई डोंट नो कि लाइक लोग क्या सर्च करेंगे गूगल, अगर लाइक सपोज मैं एक करेक्टर डॉट ए आई टाइप का ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, हुँ, करेक्टर डॉट ए आई, बट आई एम नॉट श्योर कि भाई लोग क्या सर्च कर रहे होंगे, then I can't create and matlab, then I can't run ads, I can't create content around it, I can't sell it. So basically knowing ki what people are searching for हुँ, is very important before like building anything. Like if you say ki you are going to create a podcast around business, so you should know ki what people will be searching on YouTube or Google, so that you can be found on your on their Google search result, ओके, ओके, लाइक मैचिंग द डिमांड। matching the demand. ओके, ओके, गॉट इट। मतलब जिससे हमें बेटर आइडिया आएगा कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर और Yeah, कितने लोग हैं, right. कितने लोगों का मार्केट है काइंड ऑफ। Right, and then you can create content like that. Suppose हुँ, like a lot of people are searching कि diamond industry कैसे काम करता है, so you can go and create a podcast on like diamond industry कैसे काम करता है. So you will get more users rather than like if you create content on something like AI astrology app और जो कोई सर्च नहीं कर रहा कि AI astrology कैसे काम करता है. राइट। Something like that. तो इसमें हमें किस तरह कैसे अप्रोच रखना चाहिए? लाइक एट एन आइडिएशन लेवल अगर हमें मार्केट वैलिडेशन करना है थ्रू दिस अप्रोच, तो क्या ये हाँ, तो प्रॉब्लम ये ओरिएंटेड रखना चाहिए या सॉल्यूशन ओरिएंटेड? मतलब basically like when you are doing market validation, this should be a key aspect कि like you are talking to people, but you should also see कि online कितने search आ रहे हैं. So it's a problem oriented thing. The problem like how many people are having this problem, and फिर आप solution अलग अलग type का दे सकते हो. Suppose a lot of people are searching how diamond industry work, तो उसका solution अलग अलग हो सकता है, YouTube वीडियो हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई कोर्स भी हो सकता है, बट अगर कोई सर्च ही नहीं कर रहा है, तो बेसिकली देयर इज नो मार्केट ओनली, तो प्रॉब्लम डजंट एग्जिस्ट. राइट। बिकॉज़ अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनिटली दे विल सर्च, राइट, बिकॉज़ आज के टाइम में लाइक इंडिया में भी देयर इज़ अ वेरी गुड पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, लाइक राइट, आफ्टर जियो इट हैज़ इंक्रीज़्ड। तो राइट, अगर कोई सॉल्यूशन ढूँढ रहा है तो वो नेट पे लाइक दे विल सर्च एट लीस्ट वन्स, और वैसे इतने सारे लोग होंगे तो हमें आइडिया आएगा कि ओके, इतने लोगों को राइट, इस चीज़ की ज़रूरत है और हम ऐसा कुछ बिल्ड कर सकते हैं जो इनकी नीड को सॉल्व कर सकता है। राइट, राइट. और अगर उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ लाइक कॉम्पिटिटर्स है या फिर कंपनीज़ है जो सेम स्पेस को टारगेट कर रही है, देन हाउ टू टैकल इट? तो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि हाउ वेल दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. लाइक अगर इफ समवन इज like you can see कि
सपोज एस्ट्रो टॉक है या फिर लाइक जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऐप राइट. Hmm. तो यू कैन सी कि उनके जो रिव्यूज हैं वो कैसे हैं. ठीक है, अगर जो एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटर्स हैं उनके रिव्यूज बहुत खराब हैं, or like people are complaining about something and they are not solving, then there's a space that you can create a similar product but improve that product based on what other people are complaining about your competitor. So that is how you matlab, get inside a space. uh, तो आई थिंक सिमिलर वे काम करता है ऑलमोस्ट एनी इंडस्ट्री के लिए. यू सी की व्हाट आर द कॉम्पिटिटर्स, यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स लाइक basically suppose someone is looking how to like how does diamond industry work. तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि लाइक पॉडकास्ट होगा उसके बारे में, बट हो सकता है बहुत सारे कंटेंट हो. बट you will not also know मतलब sometimes you have to do a trial and error also. You have to create content, video content, and see how people are like using it. So basically अगर प्रोडक्ट है कोई तो यू कैन सी कि लाइक इफ पीपल आर लाइकिंग दैट कंटेंट और नॉट, या फिर लाइकिंग दैट प्रोडक्ट और नॉट. इफ दे आर नॉट लाइकिंग देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ बेटर प्रोडक्ट एंड एंटर द मार्केट. ओके, तो जो हम रिव्यूज ले रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के, दे आर ऑल्सो हैविंग दैट रिव्यूज. व्हाट इफ दे मेक चेंजेस इनटू देयर प्लेटफॉर्म एंड इंटीग्रेट दैट सॉल्यूशन इनटू इट? आई क्योंकि थिंक अगर इफ हम कोई सिर्फ एक यूएसपी लेके स्टैंडिंग लाइक वी आर स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम देम, अगर उनको ये पता चल जाता है कि कंपटीशन में ये एक और ऐप है जो ऐसी चीज कर रहा है, व्हाट इफ दे जस्ट इंटीग्रेटेड इन देयर ऐप बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एक नेटवर्क है, ऑलरेडी यूजर्स है, तो उनके लिए वो चीज लाइक अडेप्ट करनी फास्ट और ईजी है. तो डिपेंड करता है. जैसे कि जैसे आप सपोज मैं विद्वानी बना रहा था राइट, तो लाइक lot of people complained about different things, minor things, ठीक है. But because I was making it for like larger audience, मैं सब कुछ integrate नहीं कर सकता. Like I can't add every feature that people want, ठीक है. So there will be things that not everyone will be looking for, ओके. ठीक है. So basically the reason uh, the bigger competitor has not already added that feature is because there's some constant key they can't add it. There must be some reason because उनका मार्केट बहुत बड़ा है या मार्केट बहुत डिफरेंट है, या फिर जिन लोगों को वो पर्टिकुलर फीचर चाहिए दैट्स अ वेरी स्मॉल market for them compared to the cost of implementing that feature. या फिर उससे रेवेन्यू बहुत कमाते हैं उनके लिए. तो वो आप टारगेट कर सकते हो बिकॉज दे आर नेवर गोइंग टू टारगेट दैट नीश. तो बेसिकली एक बहुत बड़ा मार्केट है, सपोज ए आई एस्ट्रोलॉजी इज अ बिग मार्केट, बट आप उसमें एक नीश फाइंड कर सकते हो जो कोई नहीं सॉल्व कर रहा है. लाइक ए आई एस्ट्रोलॉजी सब दे दो बट ए आई वास्तु कोई नहीं बता रहा है, तो आप ए आई वास्तु बना सकते हो ऐसा. लाइक फोकसिंग ऑन देयर वीकनेस जिस पे वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका मार्केट है, उसके ऊपर हम बिल्ड कर तो सकते हैं. मार्केट इनिशियली बहुत छोटा होगा. हम्म. आपको लगेगा कि बहुत कम लोग ढूंढ रहे हैं, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा ग्रो कर रहा है. लाइक पहले हो सकता है एक दो लोगों को ये प्रॉब्लम आती हो, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर आज चार पांच लोगों ने किया है. मतलब बेसिकली ओवर दी लास्ट फ्यू इयर्स यू कैन सी कि कितना वो प्रॉब्लम ग्रो कर रहा है या फिर वो मार्केट ग्रो कर रहा है. तो उस हिसाब से आप फिर उसमें घुस सकते हो. ओके, ओके, गॉट इट. कि ग्रोथ कितना है उस मार्केट में. मतलब हम राइट. कोई सिर्फ एक फैक्टर नहीं ले सकते कि नहीं ये स्टैटिक नंबर है और या फिर ये डेटा अभी का है. वी नीड टू से कि उसका ग्रोथ कैसा है, उसके Right. बेस So पे. basically, yeah. So basically, find a niche which is not served by the competitors because it is very small for them, but it is not small for you, and that niche should be growing rapidly. यस, अ ग्रोइंग निश. Yeah. गॉट इट, गॉट इट. एंड लाइक जब आप बिल्ड कर रहे थे तब आपको मेजरली क्या चैलेंजेस आए थे एंड हाउ डिड यू टैकल इट? Technically, अभी like ऐसे अभी पास में देखो तो you don't remember any technical challenges या फिर ऐसा कुछ. But the APIs were very costly initially. Like we were using GPT APIs, and we got some credits through startup programs, and so there was a point where we were seeing a lot of usage, and we were running out of credits. So that was one issue, and after that we got some credits, but there was a point we thought ki we had to shut down the app for a few days because a lot of people were using it and there was a lot of usage. So वो एक point था. And what we did was uh, and there was also one point where we had to migrate the payments and payments were not working.
तो लाइक माइनर माइनर चैलेंजेस आते रहते हैं, बट या ऐसा कोई मेजर चैलेंज नहीं था. Okay, okay. Majorly it was related to tech and या making the process more smoother. But राइट राइट. उसमें as such की like customer acquisition में या फिर retention में ऐसे कोई challenge नहीं था. मतलब कस्टम एक्विजिशन में कोई चैलेंज नहीं था क्योंकि हमारा लाइक इनिशियली एड्स बहुत अच्छा हाँ, परफॉर्म कर रहा था. वी हर्ड कि एस्ट्रोटॉक को इट टेक्स लाइक 100 and 120 rupees हाँ. टू एक्वायर वन कस्टमर. हमारे में वी वर एबल टू एक्वायर इट अंडर रुपीज 5. सो आर पर कॉस्ट पर इंस्टॉल वाज लाइक अंडर 5. तो हमको ऐसे एक्विजिशन में कोई इशू नहीं था. फिर वी स्टार्टेड डूइंग एसईओ एंड एएसओ आल्सो. वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम एसईओ एंड एएसओ. तो एक्विजिशन में प्रॉब्लम नहीं था. रिटेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, बट लाइक कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स इट वाज बेटर देन आवर कॉम्पिटिटर. तो मतलब वी वर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, बट नॉट अ मेजर चैलेंज. Okay, okay. And any funny particular moment या story which happened with you in the past while you were building Vedvani? जिससे सो अ आपको लॉट लगा कि अरे like what was just happened इस तरह से कोई story So है? lot of funny things happened actually. So one time like मतलब मैंने क्या किया था कि अगर बैकएंड डाउन जाता है या फिर if AI is not able to answer, so it will respond with my number, my WhatsApp number कि Oh, hey, uh, this is not working, please contact this number. And like for there was an issue and 2-3 दिन के लिए I was not able to solve that issue. Like I was trying to fix it properly, and for 2 to 3 days I used to get a lot of WhatsApp and calls from the users from Vizwani, and they used to think कि I am the astrologer, and they used oh, to like start the chat with like hello Pandit ji, मेरा नाम ये है, मेरी जन्म कुंडली ये है and all. okay. So that was very funny. Then after that, like after a couple of days, I removed my number from that. Okay, how did you tackle it? मतलब वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं like आपने फिर किस तरह से तो आंसर मैं हर एक को पेशेंटली मैं समझाता था कि हेलो मैं पंडित जी नहीं हूँ. अच्छा मैंने ये बनाया है बट मैं पंडित जी नहीं हूँ. ओके ये ऐप को ठीक करके मैं आपको मैसेज करता हूँ. मैंने आई थिंक 50 से 60 लोगों को ऐसे मैसेज किए होंगे. ओह एंड लाइक देन दे गॉट कन्विंस्ड कि ओके नो दे डोंट केयर. फिर मतलब अच्छा उनको लगता है यार ये तो पंडित जी था, नहीं है, क्या बोल रहा है. देन दे लाइक गो टू सम डिफरेंट ऐप ऐसा. ओके ओके बट मतलब उन्होंने ये सोच के अप्रोच किया कि यू ये आर थिंक वर्किंग कि फॉर पीपीओ मतलब आया है नंबर तो पंडित जी ने खुद ही नंबर भेजा है कि यहाँ पे मेरे को मैसेज करो, व्हाट्सएप करो. right okay and they're explaining their problems also एंड okay मोस्टली प्रॉब्लम लाइक बहुत पर्सनल प्रॉब्लम होती थी कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात नहीं करी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं करता है. एंड दे यूज्ड टू जस्ट मैसेज लाइक yeah. पहले ही मैसेज में सब डाल देते थे. oh okay 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 मतलब okay this is now helping me understand कि कितना ज्यादा राइट ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया इस चीज को लेके that they are राइट sharing their information with anyone and everyone जो राइट इस फील्ड के रिलेटेड है राइट एग्जैक्टली. okay okay and like after a point of time how did you scale it up तो मतलब जो मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन it was I was migrating it to scale. So basically there was one point कि मैं देख रहा था कि server used to crash often. तो फिर मेरे को लगा कि I had to migrate it. So it was मतलब I had made a lot, like I was a software engineer, so I had made a lot of apps before, but this was something which truly started to scale. Like we started to see like more than 1,000 users per day, more than 100 users per hour. So it used to crash. So it was a like very good because I like to like build apps and build scalable apps. So I like 2 days I was just coding and uh, answering messages from people and also coding so that I can make it scalable. And I think scalable banane ke liye, apart from ads and SEO, we did some Instagram marketing. I went to Mumbai for some growth event, and I found a very good agency. They were doing a lot of, they did a lot of videos. They posted a lot of videos on Instagram. We got like millions of views on those videos. So so a lot of scaling happened through that also. ओके सो लाइक आपका मेजर फोकस उसमें टेक के एस्पेक्ट पे था एंड मार्केटिंग वाज लाइक आउटसोर्स या फिर वो आपने किया था किस तरह से था हाँ, तो बेसिकली मार्केटिंग में एड्स मैंने खुद ही चला दिए थे. एसईओ मैं खुद ही कर लेता था. फिर मैंने सोचा इंस्टाग्राम वाला जो मार्केटिंग है वो मैंने आउटसोर्स कर दिया था. ओके बाकी टेक मैं पूरा देखता था. टेक में भी आई हैड हायर्ड कपल ऑफ इंटर्न्स इनिशियली जनवरी फरवरी में.
टू मेक द फ्रंट एंड, बट एक बार फ्रंट एंड बन गया तो फिर आई वुड मतलब बाकी बैक एंड वाला काम मैं खुद ही कर लेता था. ओके, ओके। सो लाइक यू हैड नॉलेज ऑफ बोथ टेक एंड मार्केटिंग, सो काफ़ी इज़िली दोनों चीज़ें अच्छे से, नॉट इज़िली, हाँ, इट हैव बीन बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी ऑन दी वे. हाँ। सो लाइक आपने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया था। आई वाज़ सेइंग ईज़ी बट नो इट्स नॉट ईज़ी। ईज़ी तो नहीं था होगा डेफिनिटली, लाइक यू हैव डन इट। या आई थिंक वो लर्न करने में, मतलब आई एम काइंड ऑफ दैट पर्सन कि जिसको लाइक लर्न करने में बहुत मजा आता है, हुँ। कि लाइक एसईओ नहीं किया तो लाइक लेट्स लर्न इट, लेट्स लर्न अबाउट इट. ओके, हाउ डिड यू स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट? और मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको एसईओ सीखना चाहिए? आई थिंक एसईओ मेरे को लास्ट ईयर से ही बहुत इंटरेस्ट था. जब मैंने देखा कि आई एम नॉट श्योर, लाइक मेरे को लगा यार कोई भी मैं ऐप बनाता हूँ या एनी स्टार्टअप आई क्रिएट, हुँ, तो हाउ कैन आई मेक इट अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स, आइदर थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर गूगल सर्च से. हुँ। तो गूगल सर्च में आइदर आई कैन पे एड्स या फिर आई कैन डू एसईओ. तब मेरे को लगा यार एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न if I have to get organic traffic on my like whatever I create, if I have to get organic traffic, I should do some SEO. तो मैं लास्ट ईयर से सीख रहा था. फिर वेदवानी में मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, तो इम्प्लीमेंट करते करते बहुत सीखा. एंड मतलब वो तो सही बात है, लाइक a lot of traffic that we got through SEO has saved us like lakhs of rupees from Google ad spend. राइट, एंड इट इज़ वेरी fascinating कि आपका न्यू स्टार्टअप इज़ आल्सो अराउंड एसईओ। Right. So right now I'm building like AI agents which can automate the whole SEO. हुँ, तो हुँ। बेसिकली अगर कल को मैं कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करता हूँ और उसका मेरे को SEO करना है, तो आई विल हैव जस्ट वन प्रोडक्ट which can do the SEO for that entire product. राइट, मतलब एसईओ इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी न्यू स्टार्टअप। विजिबिलिटी के लिए एसईओ वुड बी नीडेड। मार्केटिंग में लाइक बेसिकली देयर कैन बी मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स, राइट. हुँ, आइदर आप सोशल मीडिया के थ्रू रीच करते हो लोगों को, ठीक है. आइदर आप लाइक कम्युनिटीज के थ्रू या फिर रियल इवेंट्स के थ्रू रीच करते हो, पर वो बहुत स्लो होता है. जो सबसे इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रीचिंग योर कस्टमर इज लेटिंग देम रीच टू यू. तो बेसिकली बाकी सारे मेथड्स में यू स्प्रेड द वर्ड अबाउट योर सेल्फ, राइट. बट एसईओ इज द ओनली वे कि जहाँ पे यूजर आपको सर्च कर रहा हुँ। है, एंड टॉप दैट ना, तो उसका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत सही रह सकता है. तो एसईओ इज आई थिंक वन थिंग, वन चैनल विच एवरीवन शुड लाइक ऑलवेज पे अटेंशन टू. राइट, बिकॉज़ अदर चैनल्स पे इट्स लाइक वी आर इन्वेस्टिंग बट इट्स लाइक पुशिंग द एड्स ऑन कस्टमर्स। कस्टमर देखना नहीं चाहता बट फिर भी वो देख रहा है। राइट, बट राइट, एसईओ में इट्स लाइक पुलिंग द कस्टमर्स। राइट, राइट. Okay, okay, got it. And like, how was the acquisition story? How did you like made like I would say made it? Like, how was the journey of building the startup and getting it acquired? So basically, I was getting, because AstroTalk was like raising a lot of money Hmm. at that time. Like I think 3 to 4 months ago, it was raising a lot of money. So astrology field was very hot at that time. Like every investor was very interested in it. So I was getting a lot of calls from investors and everyone. Ki they are interested in this thing, astrology and what I'm doing. So I was talking to a lot of people, and similarly, Brahma Veda Ventures is also someone I talked to. Like they found me through a WhatsApp group in Surat, and I was looking for some like intern on the WhatsApp group, and they found ki okay, he's building in astrology space, and they were also looking to build it in this space. So initially we talked ki how they can, like we can collaborate and all. So basically they were looking to invest and like maybe do some venture building together. But I was not interested in like raising funds for this startup, because I was not coldly interested in astrology. So after that, a couple of months after that, I asked them that if they were interested in buying it instead of like building it together. So that's how it started. And after a lot of, like, I think negotiations went up to like 1 month or 1.5 months, and after that we finalized. Okay, like getting an introduction Yeah. from WhatsApp group to getting the startup acquired by their company. Amazing story, matlab Right. miracles do happen. Right, right. And I think like it was very lucky for me. Hmm. They found me, like a lot of things happen initially, and you don't like you meet a lot of people initially, and you don't know ki, like why are you meeting, or is it by chance. Yes. But like just meeting them. So basically I'll just tell you, Brahma Veda Ventures, Hmm. one of the partner of Brahma Veda Ventures
Kashyap sir, Kashyap Pandya sir. So he is also owner of Provis, and I was working out of Provis at that time. Okay. And so, like, so they found us through WhatsApp group, but we were able to like quickly meet because I was working there. Yes. Okay. So, so, so basically, it's like very everything is connected kind of a thing. Uh, Right, because yeah, like you were working in Provis also, they found you from WhatsApp group, you had a conversation, and they were also interested in building this space. right, right. Right, got it. And And since like for after like talking for the first time, there was like 3 months ka period where we were building our separate thing. They were trying to build their own like they have started doing their own research. And after 3 months, I asked them that if they are interested in like buying. okay, okay, and क्योंकि उनका space भी was very similar to what you were building, it was Yeah, easier to collaborate with them. right, right. And like since you have been there, तो आपके perspective से, what are the things that investors look into before they buy a startup? So basically, buy a startup, yeah, invest in a startup. Acquire a startup. So acquirer, like usually investors don't acquire startups. They are a venture studio, Hmm. and like venture studios is a new concept where they build a startup with you, and like they give you like uh, uh, all the resources for 1 year, and they take sizable amount of equity and they build it with you. But a lot of venture studios also like acquire startups. So what they look is like how much head start you have, how much retention, how much revenue you have. So uh, how easily are you growing? So what is your cost of acquiring customer? How much each customer acquired customer is paying to you, and what is the retention? So all the like cash flow metrics they look into. Okay, like how do they determine that कि these are going in good direction या फिर these are the good numbers? Because those are the standalone numbers and इसमें ऐसा है नहीं कि हम peer to peer comparison करेंगे या industry comparison किस No, तरह से? you can see ki, like how you are growing month on month or Hmm. week on week. So basically, if you are growing like 30% week on week, yeah, 30% month on month, so it's a good growth. So basically, anything which results into like 100% growth year on year is a good growth. 100%. Yeah, for a startup, early stage startup. Okay. That's Yeah. like almost doubling each and every single year. So basically, if you're not doubling each year, then for a startup, you are very slow. Like Shopify, right? Shopify started in 2006. Still, like in India, it is doubling the number of, not just in India, like number of Shopify store in worldwide is like grew by 125% last year. 125%. Percent, yeah. So like startups, like good startups grow at least in their initial years by 100% or more. Okay. And like what if there is some waiting time needed to reach there? मतलब एक साल बाद let's say 20% ग्रोथ हुआ फिर 30 and फिर 100 पर जब 30 हुआ तब wouldn't it bring a question कि क्या मुझे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए or I should shut it off? Matlab for you or for the investor? For the startup, for the founder, because when they see a growth it's their motivation कि नहीं मुझे इसको आगे और बिल्ड करना है जिससे कि ये और ग्रो। लेट्स से इन एन एग्जांपल पहले ईयर 1 में 20% ग्रो हुआ, ईयर 2 में 30%, बट ऐसा हो सकता है कि ईयर 3 में वो 100% ग्रो हो, बट वी डोंट नो एट द एंड ऑफ ईयर 2 कि ये होगा कि नहीं। सो एज अ फाउंडर देयर वुड बी अ क्वेश्चन कि क्या मुझे इस आइडिया के साथ या फिर ये स्टार्टअप जो मैंने बिल्ड किया है उसको लेके कंटिन्यू करना चाहिए और आई शुड जस्ट ड्रॉप इट ऑफ। सो वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि लाइक डू यू हैव अ बेटर आइडिया टू वर्क ऑन. ठीक है. So if you have a better idea which you think is more interesting, something which will grow more, then you can go after that because you don't know key like if it is like if you know, so there will be a lot of स्टार्टअप्स वेर यू विल नो कि ठीक है इस साल मैंने 20% ग्रोथ किया नेक्स्ट ईयर 30%. बट यू विल नो कि ठीक है नेक्स्ट ईयर आई ग्रो लाइक 100% बिकॉज ऑफ this things, right? Because I'll tap into this channel or this thing. So basically you will know कि you will grow or not. सो या तो वो डिपेंड करता है कि मतलब जो क्वेश्चन है कि शुड आई शट इट ऑफ और शुड आई कीप वर्किंग ऑन दिस डिपेंड्स कि लाइक डू यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग एल्स or if you don't have something else to work, then why would you want to shut it up? You only shut this off when you have a better idea to work on. Okay, okay. So like if we are forecasting 100% growth next year, then we should have
रेशनल बैकिंग विद इट कि क्यों 100% हम सोच रहे हैं, क्या-क्या हाँ, रीज़न्स हैं और अगर राइट, हम नहीं आगे जाना चाहते इसके साथ, तो व्हाट इज़ द रीज़न? क्या मुझे कोई बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है या फिर आई हैव राइट, गॉट इनफ वैलिडेशन कि ये आगे नहीं जा रहा, उसके पीछे भी राइट, क्या रीज़न है? तो वो दोनों रीज़न्स का भी हाउ टू चेक कि राइट, फिर फाइनली कौन से डायरेक्शन में जाना है, उसमें हमें हेल्प करेगा। राइट। ओके एंड एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू budding entrepreneurs? I think just start with something small, like a very unique idea, get it out fast as possible to the user, get feedback, and just keep on building upon that. I think that is the only thing that I've seen that works. Like even Facebook started with like very basic, like you get just create friends and you could poke, but now it does a lot of stuff. Even Google started like you can just with the very simple value proposition that you can search online information. Facebook started with a very simple value proposition that you can make you can find information online about your friend. Hmm. And Amazon started that you can buy any book online. But now if you see Amazon, it does a lot of thing. Facebook does a lot of thing. Google does a lot of thing. Anything like Shopify also started with a very simple value proposition. So basically start with something very simple. Key like what is one thing that you can do better than whatever your competitor is doing. And like once you have done that, you'll see a lot of growth automatically, and then you can start doing a lot of other stuff. But before, like don't try to do a lot of stuff at once. Try to solve one value proposition, and quickly iterate it, like see what works, what doesn't work, and like double down on what works. राइट ओके मतलब को एक चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में, बाद में एक बार वो स्किल हो गया, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें इंटीग्रेट करना वुड बी मच मोर ईजियर देन एक साथ सारी चीज़ें इंटीग्रेट करना। Right, right. ओके दैट वाज़ अ रियली ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। मुझे भी काफ़ी सारी न्यू चीज़ें जानने को मिली अलोंग विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड किस तरह से आपने एक पूरा बिल्डिंग जर्नी कवर अप किया एंड आई एम श्योर यूजर्स सॉरी यूजर्स व्यूअर्स व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल लगा होगा एंड यू हैव बीन टिल द एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर श्योर Yeah, एंड टू द definitely. व्यूअर्स ये पर्टिकुलर वीडियो हर एक उस फ्रेंड के साथ जिसको एक स्टार्टअप बिल्ड करना है, जिसको एक इम्पैक्ट लाना है, उसके साथ ज़रूर शेयर करना बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन स्टैक्ड अप टू देम एंड दैट कैन बिल्ड अप अ न्यू आइडिया। So thank you so much for watching till the end and see you in the next video. Yeah. And I would like to add one more thing. Yes, yes. Thank you, Preksha, for doing this video. I think it might be helpful for a lot of people. Yeah. And also, like if anyone needs any help or advice, so they can find my LinkedIn on the description of this YouTube channel. Sure, sure, sure. I'll surely add it. So, thank you. Okay, thank you so much for your time. Bye bye.